मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ ओविक रॉय फ्रॉम द मैथमेटिक्स आइकॉन चैनल, योर मैथमेटिक्स टीचर. ओके, सो इन दिस lecture just we are going to discuss the mathematical induction chapter for class 11. Okay, and the CMHT students, that means those who have the CMHT in the commerce stream, they can also view this lecture because this mathematical induction chapter is there in their syllabus, in your syllabus actually, in the CMHT syllabus. Okay, so just you can see the lectures properly. Okay, so we are going to just solve different type of questions. I think in the last lecture just we had solved different questions and the various questions, okay, from the induction chapter as well. So in this lecture just we are going to cover the board standard, board level questions which are very very important for your final exam and for the entrance exams also. Basic concepts is actually starts from this type of questions. Okay, so you have to do the practice properly, you have to view the lectures properly, then I think you will get the idea how to solve the induction process questions. Okay, so as I told you that induction process is based on the natural number, and the natural number is what? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That means from 1 to infinity. Okay, 0 is not involved and the fraction numbers is not, that means only the round figure numbers will be there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to infinity. Okay, so in this lecture just we will discuss the questions, some questions which are very very important for the board exams. Okay, so just write the first question, just write the first question here. Okay, now start. Pen or paper लो और start करो. Prove that by the principle of mathematical induction, prove that by the principle of mathematical induction, prove that by the principle of mathematical induction, Pn says that 1 plus 4 plus 7, 1 plus 4 plus 7 plus ... plus 3n minus 2, 3n minus 2 equals to half n 3n minus 1. ये है क्वेश्चन. This is the mathematical statement. Pn says that. That means it is a mathematical statement. We have to verify this mathematical statement for the different values of n. Here you can see the small n is there, and small n is what? Natural number. Just remember this word, small n. That means if anywhere this small n is being surfaced or is being focused, then you should consider this small n as the natural number set. And then as you all know that natural number set starts from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to ... infinity. Okay, now here 3 steps are there. So for पहले मुझे n equals to 1 के लिए चेक करना है कि नहीं? तो यहां पर ये देखो एक सीरीज है, हम लोग एपी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें जब n का वैल्यू 1 बिठाते हैं, n का वैल्यू जब whenever just we will put 1, what does it mean? That if you are putting n equals to 1 on Tn, or on the result, that means this result, then which term is being actually being come out from this n equals to 1 expression? n का वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तब ऑलवेज कौन सा टर्म निकलेगा? फर्स्ट टर्म निकलेगा. किसका फर्स्ट टर्म निकलेगा? जो सीरीज दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म निकलेगा. तो यहां पर जो सीरीज दिया है इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है? 1. दैट मींस n का वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा कहां पर? इसके, क्योंकि दिस द रिजल्ट है नहीं, तो रिजल्ट के ऊपर n का वैल्यू 1 में पुट करूंगा, करके देखूंगा आंसर क्या 1 आ रहा है. फर्स्ट टर्म तो आना चाहिए, क्योंकि ये तो क्या है, ये जो समेशन रिजल्ट है ना, दैट मींस ये Sn है. ठीक है, तो दैट मींस Sn दैट मींस सम है ना, n टर्म्स का सम क्या दिया गया है? हाफ n 3n माइनस 1. तो जब मैं n का वैल्यू 1 पुट करूंगा S1, तो दैट मींस हाफ इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1, दैट मींस हाफ इंटू 2. दैट मींस आंसर क्या है? S1 मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म है ना, S1 और T1 जो है एक ही बात है, तो दैट मींस T1 इज 1, फर्स्ट टर्म इज 1 आ रहा है ना फर्स्ट टर्म. सो दैट मींस सेटिस्फाई तो हो रहा है. n का वैल्यू 1 पुट करने से
फर्स्ट टर्म तो आ रहा है, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये n इक्वल्स टू 1 के लिए तो एटलीस्ट ट्रू निकल रहा है। दैट मीन्स n का वैल्यू 1 में पुट करूंगा, कैसे लिखूंगा, p ऑफ 1 सच दैट हाफ इंटू 1 इंटू 3 into 1 minus 1. That means half into 1 into 2. That means 1. Okay? So it is the T1. Term number 1. Okay? So, P of 1 is true. True तो आ रहा है। N का वैल्यू 1 पुट करने से देखो, ट्रू तो आ रहा है। फिर N का वैल्यू for N equals to K. N का वैल्यू K पुट करने से क्या होता है, P of K such that 1 plus 4 plus 7 plus dot 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 plus 3K minus 2। मैंने बोला था n का वैल्यू k पुट करना है, दैट मीन्स n और k दोनों एक ही बात है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन n एंड k। n इज नेचुरल नंबर, k इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। ओके, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस n and k। So this given statement, just you have to replace this n by k. Rest of the things will be same. बाकी जो पार्ट है वो सेम रहेगा, दैट मीन्स हाफ k 3k माइनस 1 हो गया। इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 देके रखो, इसको वेरीफाई करने तो जरूरत है नहीं क्योंकि n और k दोनों सेम बात है, तो जस्ट आपको n के जगह k को रिप्लेस करके लिख देना है, बस हो गया। फिर n इक्वल्स टू क्या होगा, k प्लस 1, यहां पर ही मेन कैलकुलेशन होगा, p ऑफ k प्लस 1 है कि नहीं। अच्छा, p ऑफ k प्लस 1 दैट मीन्स यहां पर n का वैल्यू क्या है, k प्लस 1। अच्छा, अब k प्लस 1 किसके बाद आता है, k के बाद आता है ऑब्वियसली। जहां पर kth टर्म होगा इसके ठीक बाद कौन सा टर्म होगा, k प्लस 1th टर्म है कि। सो दैट मीन्स ये तो kth टर्म है, देखो, तो उसके बाद जो टर्म आएगा वो टर्म क्या होगा, वो k प्लस 1th टर्म होगा। दैट मीन्स p ऑफ k, n का वैल्यू k प्लस 1 पुट कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, k प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर 1 प्लस 4 प्लस 7 ऐसे करते करते ऐसे तो जाएंगे, यहाँ पर 3k माइनस 2 तो जाएंगे। तो ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है, kth टर्म है। अब kth टर्म तक तो हम लोग को स्टॉप नहीं रहना है, हम लोग को कहां तक जाना है, n का वैल्यू हम लोगों ने k प्लस 1 पुट किया है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितना है, k प्लस 1 है। सो हम लोग को उसके बाद k प्लस 1 टर्म लिखना है। तो k प्लस 1 टर्म कैसे लिखेंगे, जस्ट हम लोग k की जगह k प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे, दैट मीन्स 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 2। देखो ठीक है, देखो जस्ट k की जगह हम लोगों ने ये कौन सा टर्म है, ये k प्लस 1 टर्म है, ठीक है। यहां तक तो n का वैल्यू क्या था, दैट मीन्स kth टर्म तक हम लोग स्टॉप हो गए। बट यहां पर जो है k प्लस 1, दैट मीन्स k प्लस 1 है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, तो दैट मीन्स यहाँ पर लास्ट टर्म कौन सा होगा, k प्लस 1th टर्म होगा। तो k प्लस 1th टर्म जो है ये किसके बाद आता है, kth टर्म के बाद आता है। तो kth टर्म यहाँ पर क्या है, ये देखो 3k माइनस 2 kth टर्म है, तो उसके बाद जो k प्लस 1th टर्म आएगा इसका मतलब क्या है, k के जगह आपको रिप्लेस क्या करना है, k प्लस 1 करना है। जस्ट हम लोगों ने k के जगह k प्लस 1 लिख दिया है, देखो बाकी तो एज इट इज सेम है, ठीक है। अब जो है देखो यहां से लेके यहां तक ये तो इक्वेशन नंबर 1 जो है इस तरह ही दिख रहा है, देखो इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये देखो ये वाला पार्ट, इसका आंसर क्या है, ये है कि नहीं। तो दैट मीन्स ये पूरा सीरीज की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसका आंसर है ना, ये इक्वल्स टू है, तो ये टर्म भी तो यहाँ पर ये पूरा इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं, जस्ट लिख लो। तो लिख लो, देखो क्या आ रहा है। अच्छा देखो, सो p ऑफ k प्लस 1 सच दैट क्या आएगा, हाफ k 3k माइनस 1। अच्छा, अब ये टर्म तो आपको एज इट इज लिखना है, दैट मीन्स 3k प्लस 3 माइनस 2 है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहां पर क्या आएगा, हाफ k 3k माइनस 1 और इधर 3k प्लस 1 है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर जो है p ऑफ k प्लस 1 ये ट्रू है कि नहीं हम लोग कैसे जानेंगे, और कब ट्रू होगा ये कैसे मानेंगे कि ये p ऑफ k प्लस 1 ट्रू है। इसका एक शॉर्टकट मेथड है,
जिससे आप लोग जो है डायरेक्ट आंसर निकाल भी सकते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पहले से क्वेश्चन आंसर जो है सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ही आप लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू k+1 जो है पुट करके देखेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में क्या आएगा। देखो तो हाफ k+1 और 3k+1 -1, दैट मींस अल्टीमेटली हाफ k+1 और इधर 3k+2, दैट मींस ये आंसर आना है। जब ये आंसर आएगा तभी P of k+1 ट्रू होगा, है कि नहीं। तो ये आंसर तो अभी तक तो नहीं आया है। देखो ये तो एक k+1 के लिए हम लोग देख रहे हैं, दैट मींस n का वैल्यू k+1 जब पुट करना है तब आंसर क्या आना है, यहां पर ये चीज आना है, ठीक है। तभी जब P of k+1 ट्रू हम लोग लिख सकते हैं, है नहीं। तो हम लोग को ये वेरीफाई करना है कि ये जो आंसर यहां से आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट मींस आंसर पहले से आपको पता है, आपको इस पार्ट को कैलकुलेशन करके ये जो टर्म, ये जो आंसर है वो लाना है। देखो तो यहां पर एक काम करते हैं, देखो हाफ कॉमन ले लेते हैं, है कि नहीं। तो हाफ कॉमन लेके देखो 3k² - k और इधर 3k+1, है कि नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा यहाँ पर, है कि नहीं। थोड़ा करो यहाँ पर कैलकुलेशन, देखो क्या आया। तो हाफ पूरा कॉमन ले लेते हैं, 3k² - k प्लस हाफ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6k+2, दैट मीन्स हाफ 3k² + 5k+2, है कि नहीं। तो दैट मीन्स हाफ 3k² + 3k मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो सकता है। देखो तो दैट मीन्स हाफ 3k कॉमन लेंगे, 3k कॉमन लेंगे तो यहां पर आएगा k+1 और इधर 2 कॉमन लेंगे k+1, सो दैट मीन्स हाफ क्या आ रहा है, k+1 3k+2। देखो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। देखो आंसर आ गया। तो आंसर देखो P of k+1 का जो आंसर निकलना था, दैट मीन्स आई थिंक यू हैड गॉट द फाइनल आंसर है in the beginning. Just you have to match the answers. That means you have to approach to this answer by solving this P of k+1 part. Okay, so just after solving these things, just I am saying that this part is done. Just you can see these two parts are same. Okay, so if this part is coming, then so P of k+1 is true. बस प्रूव्ड, है कि नहीं, प्रूव्ड हो गया। सो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और भी डिफरेंट तरीके, डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पर सीरीज दिया जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, है कि नहीं। करो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। प्रूव दैट prove that 1 square plus 2 square plus 3 square plus ... plus n square equals to n into n plus 1 twice n plus 1 by 6। प्रूफ करना है, ये सीरीज आपको प्रूफ करना है फॉर 3 थिंग्स, n equals to 1, n equals to k, n equals to k+1। The question will be given like that, prove that this by using mathematical induction। ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, है कि नहीं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है, दैट मींस ये स्टेटमेंट को वेरीफाई कराना है। दैट मींस आपको 3 steps that you have to follow, okay, and 3 steps what they are। First step is n equals to 1, second step is n equals to k, third step is n equals to k+1, okay। 3 स्टेप लेना है आपको। तो यहां पर गिवन तो ये है, ऐसे लिख लो, गिवन P of n this, okay, for n equals to 1,
अच्छा n इक्वल्स टू 1 कहां पर पुट करेंगे? p ऑफ 1 सच दैट इसमें पुट करेंगे, ये तो Sn है ना, इसमें पुट करेंगे, देखेंगे फर्स्ट टर्म आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं? तो यहां पर n दैट मीन्स 1 1 प्लस 1 1 इंटू 2 इंटू क्या रहा है बाई 6 भी है, होल बाई 6 भी है कि नहीं? तो बस यहां पर आपको क्या देखना है, इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 6. So I think cancel 1 and this 1 can be written as 1 square. So I think first term is coming. First term is coming after using n equals to 1. So that is p of 1 is what? True. P of 1 is what? True. Simple thing. For n equals to k, n equals to k put करना है, ये second step है. So p of k, इसको मैंने बोला था no need to verify these things because n and k both are same. So just you have to write the series 1 square plus 2 square plus 3 square and just you have to replace this n by k. Rest of the things will be same, k plus 1 and 2k plus 1 by 6. This is equation number 1. Okay. So here, what is your kth term? This term is what? Kth term. And this is your Sn. Okay. Now you have to use n equals to k plus 1. That means you have to take the k plus 1 number of terms. So that means one term will be extra in this series because this kth term is there. Now you have to introduce k plus 1th term also after this series. That means p of k plus 1, what will be there? देखो 1 square 2 square 3 square plus dot dot, ये तो गया kth टर्म, है कि नहीं? kth टर्म तो गया. अब kth टर्म के बाद कौन सा टर्म आएगा? k plus 1th टर्म आएगा. तो that means this k के जगह हम लोग को क्या यूज करना है? k plus 1 उसमें. ओके. तो ये कौन सा टर्म होगा? ये k plus 1th टर्म होगा. ठीक है कि नहीं? नाउ यहां से लेके यहां तक तो देखो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लिख सकते हैं हम लोग. दैट मीन्स k प्लस 1 2k प्लस 1 बाय 6 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर. सो दोनों से देखो k प्लस 1 अगर मैं कॉमन लूं तो क्या आएगा? k 2k प्लस 1 बाय 6 k प्लस 1. ठीक है, यह तो हम लोग को निकल गया. अब नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव? What you have to prove? Just you can verify and you can find the answer in advance also. Okay, how to find the answer? Just you have to use k plus 1 in that answer. Okay, in this right hand side. Just remember this thing. So n के जगह मुझे क्या पुट करना है? k plus 1. ये हो जाएगा k plus 2 और ये हो जाएगा 2k plus 3 whole by 6. That means ये आंसर लाना है. If this answer will come, if this expression will come, then p of k plus 1 will be true. So now by solving this expression, anyhow we have to approach to this answer as well. Okay, now देखो स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या होता है. So now p of k plus 1 such that क्या रहा है? k plus 1 तो बाहर तो एक ही, अंदर जो है 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 बाई 6. It means k plus 1 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 बाई 6. मिडल टर्म फैक्टराइजेशन तो होगा शायद, दिखाई दे रहा है मुझे, है कि नहीं? 2k स्क्वायर 4k प्लस 3k प्लस 6 बाई 6, है कि नहीं?
तो करो कैलकुलेशन, देखो क्या आ रहा है, k प्लस 1 2k k प्लस 2 प्लस 3k प्लस 2 बाई 6. So k प्लस 1 k प्लस 2 and 2k प्लस 3 बाई 6. देखो रे भाई आ रहा है. सो आ गया ना, यही तो आना था. p of k plus 1 is true. Is true. p of k plus 1 is true. So proved. देखो है, सिंपल है. ओके. ये सीरीज आपको शायद एपी में भी मिला होगा क्लास 10 में, है एपी में भी मिलेगा आपको. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ. इस टाइप का ही क्वेश्चंस. ठीक है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Next, P of n such that 1 into 3, 2 into 3 square, 3 into 3 cube plus dot 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 plus n into 3 to the power n equals to 2n minus 1, 2n minus 1, 2n minus 1, 3 to the power n plus 1, 3 to the power n plus 1 plus 3 whole by 4. Okay, this is the question. Okay, ऐसे ही आपको डिफरेंट टाइप का सीरीज दिया जाएगा. प्रोसेस जो है वो एक ही है, प्रोसेस एक ही है. यहाँ पर कोई वेराइटी नहीं है प्रोसेस में, है कि नहीं. आपको एक सेम तरीके से ही करना है. ओके. सो फॉर n इक्वल्स टू 1, तो p of 1 such that उसमें पुट करना है 2 into 1 minus 1, 3 to the power 1 plus 1 plus 3 by 4. देखो आंसर कितना आ रहा है. 2 minus 1, ये तो 3 square plus 3 by 4. That means 12 by 4. That means 3. 3 को हम लोग 1 into 3 नहीं लिख सकते क्या? देखो तो 3 को हम लोग 1 into 3 फर्स्ट टर्म आ गया ना, है. So that means फर्स्ट टर्म आ गया, तो फर्स्ट टर्म. So p of 1 is what? True. हो गया. p of 1 true हो गया. अब for n equals to k, so as I told you, for n equals to k, no need to verify these things. Just you have to replace this n from the given question as well. p of k such that 1 into 3, 2 into 3 square, 3 into 3 cube, dot 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 dot, n into n नहीं होगा, k into 3 to the power k. ठीक है, n के जगह तो k पुट करना है. इक्वल्स टू 2k minus 1, 3 to the power k plus 1 plus 3 by 4 is your equation number 1. Now what you have to prove for p n equals to k plus 1, n equals to k plus 1. This is the third part. So k plus 1. Now 1 into 3, 2 into 3 square, 3 into 3 cube, dot 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 dot, k into 3 to the power k. ये तो kth टर्म है, ये तो k टर्म है भाई. उसके बाद कौन सा टर्म आएगा? ये k के जगह क्या आएगा? k plus 1 आएगा into 3 to the power इस k के जगह में क्या आएगा? k plus 1 आएगा. तो ये आ जाएगा k plus 1 टर्म, k plus 1 टर्म, है कि नहीं? ठीक है. सो यहां से लेके यहां तक तो देखो इक्वेशन नंबर 1 से तो हम लोग लिख सकते हैं कुछ. क्या लिख सकते हैं? 2k minus 1, 3 to the power k plus 1 plus 3 by 4, और इधर जो है k plus 1, 3 to the power k plus 1.
लिख रहे हैं, ठीक है। अब नाउ what you have to prove, just you can find the answers in advance. Okay, just replace this n by k plus 1 in the given answer, in the given question. You will get the answer. Then after that you have to match the answers. तो यहां पर n का वैल्यू k plus 1 पुट करके क्या आ रहा है, राफ में निकाल के रख लो, 2 into k plus 2, that means 2k plus 1, 2k plus 1, 3 to the power k plus 2 plus 3 by 4. ये आंसर आना चाहिए। जब ये आंसर आएगा तभी जाके p of k plus 1 ट्रू होगा, है कि नहीं। नाउ ऐसे लिखो, ये है आपका पढ़ना, तो p of k plus 1 such that 3 to the power k plus 1 एक कॉमन ले सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। काम करते हैं, पहले एलसीएम कर लेते हैं, फिर उसके बाद कॉमन लेंगे। एलसीएम पर क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 2k minus 1, 3 to the power k plus 1 plus 3, और ये आ जाएगा 4k plus 1, 3 to the power k plus 1, ठीक है। अब ये देखो, ये टर्म और ये टर्म से 3 to the power k plus 1 एक कॉमन आता है। कॉमन आके रहेगा क्या, 2k minus 1, और इधर रहेगा 4k plus 4, और प्लस 3 अलग रहेगा, ये प्लस 3 तो अलग रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है आपको। फिर 3 to the power k plus 1, ये हो जाएगा 6k plus 3 होल बाई 4 प्लस 3, है कि नहीं। फिर क्या आएगा, देखो 3 to the power k plus 1, आंसर देख रहे हो ना, क्या आना चाहिए, यहां से 3 एक कॉमन आता है, देखो तो 2k plus 1 plus 3 by 4 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। सो इसके ऊपर पावर तो 1 है, तो मल्टीप्लाई होने से पावर जो है वो प्लस होता है, 3 to the power k plus 2, 2k plus 1 plus 3 by 4 आ गया ना। सो p of k plus 1 क्या आ गया, सो p of k plus 1 is true, यही तो आ गया ना, is true, ठीक है, आ गया ना आंसर, क्या बोलते हो। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव दैट, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव दैट p of n 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5 plus dot 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 plus n plus 1 n plus 2 equals to n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 by 4, n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 by 4, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। So it is your next question. Okay, now n equals to 1, ये तो आपको पहले प्रूव करना ही है। Okay, n equals to 1, p of 1 such that, कहां पर बिठाएंगे, इसमें बिठाएंगे, कौन सा आंसर आना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म जो है ये आंसर आना पड़ेगा, तभी जाके p of 1 ट्रू होगा। सो पुट करो n equals to 1, इसमें 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3 by 4. So that means 1 into 2 into 3 into 4 by 4, 4 कैंसल, आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म आ रहा है, फर्स्ट टर्म आ रहा है कि नहीं। So that means p of 1 is what, true. So n equals to k plus 1, n equals to k plus 1 आपको पुट करना है, n equals to k plus 1 पुट कर, सॉरी k n equals to k, so p of k such that
तो मैंने बोला था जैसा है वैसे लिखना है, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट प्लस k इंटू k प्लस 1, k प्लस 2 इक्वल्स टू k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 बाई 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिखे रखना है आपको, ठीक है। अब n की जगह k प्लस 1 पुट करना है, तो दैट मीन्स k प्लस 1 टर्म तक प्रोसीड करना है मुझे। यहां तक तो kth टर्म है, ये जो है क्या टर्म है, ये तो kth टर्म है। तो kth टर्म के बाद ऑब्वियसली k प्लस 1 टर्म आएगा। k प्लस 1 टर्म कैसे लिखेंगे, p ऑफ k प्लस 1 सच दैट, देखो 1 2 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट प्लस k प्लस 1, k प्लस 2, ये तक तो kth टर्म गया। अब k प्लस 1 टर्म निकालना, दैट मीन्स इसके बाद जो टर्म होगा हर जगह प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा। दैट मीन्स ये k हो जाएगा क्या, k प्लस 1, ये k प्लस 1 क्या हो जाएगा, k प्लस 2, ये k प्लस 2 क्या हो जाएगा, k प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 टर्म, है कि नहीं, और ये हो जाएगा k टर्म। सो यहां से लेके यहां तक जो है इक्वेशन नंबर 1 ही है। सो इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 बाई 4 प्लस k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 हो गया। आंसर क्या लाना है, क्वेश्चन तो ये है आपके पास, निकाल के रखो। यहां पर के n का वैल्यू k प्लस 1 पुट करके देखो ना क्या आ रहा है, चेक कर सकते हैं, तो करके देखो क्या आ रहा है, n का वैल्यू k प्लस 1 पुट करके। तो ये दोनों में देखो p ऑफ k प्लस 1 है, कॉमन आता है, देखो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 कॉमन आता है। कॉमन होने के बाद यहां पर मिलता है k बाई 4 प्लस 1, दैट मीन्स k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 होल बाई 4, ये आना चाहिए क्या, चेक कर सकते हैं। n का वैल्यू k प्लस 1 पुट करो, यहां पर देखो k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 2, ये हो जाएगा k प्लस 3, ये हो जाएगा k प्लस 4 बाई 4, अरे आ गया। दैट मीन्स यही तो आंसर आना है, ठीक है। दैट मीन्स इसको अभी थोड़ा सुंदर करके अगर लिखेंगे, देखो k प्लस 1, k प्लस 2 को कैसे लिख सकते हैं, देखो तो k प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, k प्लस 1 प्लस 2, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर k प्लस 1 प्लस 3 होल बाई 4। सो p ऑफ k plus 1 is true. P of k plus 1 is true. ठीक है, हैं? लिख सकता है ना ऐसे, क्या बोलते हो, ठीक है। फिर यही तो प्रूफ करना था, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट जाओ, बहुत सारा क्वेश्चन है, कौन सा करोगे, खत्म नहीं होगा। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिखो, इफ x and y आर टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, मतलब दो अलग अलग इंटीजर है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ओके। इफ x and y are two distinct integers, then prove by using mathematical induction, Pn such that
Pn such that x to the power n minus y to the power n is divisible by x minus y. For all small n belongs to capital N, ये तो हम लोग जानते ही हैं. That means ये x to the power n minus y to the power n, ये जो एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल होगा किससे? x minus y से डिविजिबल होगा. That means ये स्टेटमेंट है, आपको वेरीफाई करना है in 3 steps. First step is n equals to 1, second step is n equals to k, and third step it is n equals to k plus 1. Okay? You have to verify. Okay? बहुत गर्मी है यार, कोई एसी भी नहीं है, फैन भी चला नहीं सकता हूँ क्योंकि फैन चलाने से जो है साउंड वीडियो में आ जाता है. कितना मेहनत कर रहे हैं देखो, है? फिर भी आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए जिससे मोटिवेशन मिले, हैं, so that I can get the inspirations from your side. Okay, it means all the things and all the hurdles can be crossed by the sufficient encouragement, by the sufficient motivations also. If you are getting the motivations and the inspirations from the other sources, then I think you may face various types of problems. You can face, no problems. You can face, okay, and various types of problems are supposed to be confronted in the nearest future also, because the future is coming. And I think the 10th result, state board result is announced, and you have got the results, your results. And remember this thing, this result is useful only for getting admission in science, arts and commerce. For rest of your life, this result will not be useful. And whatever you have got, the percentage in this class, in this board exam, that means 10th exam, that will be applicable for the admission process in the next phase of your life, and which is the most important phase of your life. Okay, so 11th and 12th, these 2 years, don't compare these 2 years with the rest of the 10 years which you have crossed, already crossed. Okay, so this 10 years is different and this 2 years is totally different. This is the main important, that means the important phase of your life, these 2 years. Okay, if a student stick to his words and stick to his aim in these 2 years, then nobody can stop him to achieve the aim or goal whatever is set in his mind. Okay, it depends up to you. Okay, if you are just coming in touch with the bad people, then the bad behaviors and bad characteristics will be imposed on you. But whenever just you will come to the touch of this good people and the good environment and good educational environment, then your study, your marks, your mentality, your character, all the things will be improved. So remember these things. Try to avoid the actually the bad company. Okay, just try to get in touch with the good company as well. That good company means good friends. Okay, no need to actually this share, no need to share your views, no need to share your everything, no need to share your time with the bad people as well. Okay, just if you are coming, that means whatever you have got in this 10th exam, 88%, 90%, 93%, 94% that I have seen. But if you are coming in the bad company, then this marks and this everything, your hopes, your actually your aim and goal, everything will be finished. Everything will be crashed. Okay, so just if some bad people, if some bad atmosphere, okay, is attracting you, then just let them go. Just let them go. Okay, just pass करके चले जाओ सामने से. But no need to face these things. If you are a good people, if you are a good human being, then various types of problems and various things will be actually will be confronted, will have to be confronted
as a good pupil, always the bad things and a bad atmosphere will attract you. But as a good human being, as a science student, we have to confront all of the things and we have to pass. Okay, just we have to close these things, just let it be. Okay, every time that you will have to face any the repulsive situations. Okay, but just keep emphasis on your studies, do your studies well, and keep hard working. Okay. Now here n equals to 1, p of 1 such that x to the power 1 minus y to the power 1. What is that? X minus y. Is it divisible by x minus y? Obviously. So p of 1 is true. n का वैल्यू 1 पुट करने से स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, डिविजिबल बाई x माइनस वाई हो रहा है, ट्रू. n इक्वल्स टू k, तो p ऑफ k such that x to the power k minus y to the power k is divisible by, as I told you, this part, no need to prove these things, x minus y. That means x to the power k, y to the power k. अच्छा, इसको हम लोग देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x to the power k minus y to the power k is divisible by x minus y, है ना. तो इसको देखो तो x minus y into k, that means x minus y के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर ये मिलेगा. जैसे 6 is divisible by 3, that means 3 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 6 मिलेगा. कुछ ना कुछ को k लिखते हैं ना हम लोग, है ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो x माइनस वाई से डिविजिबल है, दैट मींस x माइनस वाई के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपको ये मिलेगा. तो दैट मींस इसको इक्वेशन नंबर 1 आप दे सकते हैं. n इक्वल्स टू k प्लस 1, सो p ऑफ k प्लस 1. तो ये तो सीरीज नहीं है, ये तो सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर सीरीज का कुछ प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है, जस्ट x टू द पावर n है ना, n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1 माइनस y टू द पावर k प्लस 1, है कि नहीं. ठीक है. अच्छा, यहां पर देखो x टू दी पावर k इंटू एक्स माइनस y टू दी पावर k, y टू दी पावर k इंटू वाई, लिख सकते हैं ना ऐसे, है कि नहीं. अच्छा, यहां पर देखो ये जो फ्रॉम 1 x टू दी पावर k को क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू के माइनस वाई टू दी पावर k, ऐसे लिख सकते हैं. x टू द पावर k का वैल्यू अगर मैं निकाल लू फ्रॉम 1 से, ऐसा होता है ना, तब यही x टू द पावर k का वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं. पुट करके देखो क्या है, x माइनस वाई इंटू के माइनस एक्स वाई टू द पावर k, है कि नहीं. ठीक है, y टू द पावर k पूरा होल ब्रैकेट देके बाहर तो x रहेगा, माइनस y टू द पावर k इंटू वाई. ठीक है, तो देखो क्या रहा है, मुझे तो अल्टीमेटली क्या प्रूफ करना है कि x माइनस वाई से डिविजिबल है कि नहीं. ठीक है, तो देखो तो यहां पर देखो क्या रहा है, x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू के माइनस x इंटू वाई टू द पावर k माइनस y इंटू वाई टू द पावर k. इस एक्सप्रेशन में ऑलरेडी x माइनस वाई तो है ही तुम्हारे पास, x के माइनस तो ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, तो ये प्लस है कि नहीं. फ्रॉम 1 देखो ये तो प्लस होना चाहिए, तो प्लस, ये प्लस है. y टू दी पावर k अगर कॉमन लेंगे x माइनस वाई, तो दोनों में से देखो x माइनस वाई कॉमन आता है ना, इधर रहता है x के और इधर रहता है y टू दी पावर k. देखो x माइनस वाई तो एक फैक्टर मिल गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये क्या डिविजिबल होगा x माइनस वाई से, क्योंकि यहां पर देखो x माइनस वाई तो एक फैक्टर ही मिल गया तुम्हें. सो इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई. सो p ऑफ k प्लस 1 is what? True. Okay.
सो डिफरेंट क्वेश्चंस देखो कितना डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो ये सब ही मतलब इंडक्शन प्रोसेस, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको इस टाइप का ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको एनसीईआरटी भी में मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग्स एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर जस्ट वी विल डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नो नीड टू बी fear, no need to be scared. Don't be feared also. Okay, don't get the fear. Okay, now इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। टू हॉट टुडे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, सो आप लोग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे मेरा सब्सक्राइबर बढ़े। और ज्यादा टाइम नहीं है 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए, बहुत ही कम बाकी है, तो हो जाएगा। आप लोगों को अगर साथ रहे, सपोर्ट रहे, तो ऑब्वियसली आई विल अचीव दिस थिंग्स एंड दिस 4000 hours watch hour, almost 1000 hour is completed. Okay, so I think if this type of supports will keep going, then I think this milestones can be achieved, milestone can be crossed also. Okay, so thank you for your support and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then stay safe and stay healthy.